Okay, so yeah, the video is recording is started. So this is what we are doing today. Uh, Divide the player minimum score between two cities. I think we have done this. So basically first question में ये कहता है आपका कि जिस लेटर से आपका वर्ड एंड होता है अगला वर्ड जो स्टार्ट होने वाला है दैट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम लेटर. फॉर एग्जांपल दिस ई पेयर, this SS pair, right, and this DD pair, right? So this is what I want, or it also wants ki last character should be equal to first character, something like that. So that's what I have done here. Okay, I wrote the solution in Python. You can write in any language, but basically the logic was to see acha how to determine that these two words to check like first order stop check kar loge. How to determine this EE pair? You can determine it by whenever the space is coming into the string. Okay, whenever the space is there, you just check the letters after and before the space. So when I saw s of I is equal to space, then s of I minus 1 should be equal to s of I plus 1, right? Then and true, otherwise and false. So that would eventually return me is that true or false. So for example, in this, will I proceed? No, because in this no space is coming. I'll just check 0 is equal to last. Yes, so it's okay, good. But इसमें space पे I or ER है, so that's not good. So that's again like submit तो मैंने कर रखा है. Why to again submit? But yeah, accepted. Yeah, let's see the second number of question. This is you are given a पॉजिटिव इंटीजर एरे स्केल्स ऑफ इवन लेंथ. बेसिकली आपको एक एरे दे रखा है जिसमें आपकी स्केल्स है एंड अब आपको क्या करना है. यू नीड टू डिवाइड दिस एरे इनटू n by 2 teams, n by 2 teams of size 2. So you have to form n by 2 teams of size 2, but the something like ki the total scale of each team should be equal, like the sum of two elements should be equal. So this n elements was given to you, it will be always be even, I guess, right? No, it's not given. If it's not possible, then you have to return -1. So some cases when it's not possible, when the total number of elements is odd, right, then no, okay, given even length n is given. So you have to just form n by 2 pairs, which is always possible because n is even. So the pair should have all pairs should have same sum. ठीक है, sum of every pair should be same. तो इसमें the only logic I did was कि अगर सबका sum same है तो अगर आप शुरू का first और last element का जो sum है, ठीक है, वो ही सब सारे सम के बराबर होना चाहिए. बिकॉज सॉर्ट कर दो तो फिर जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है अगर तुमने उसे सबसे छोटे वाले के साथ नहीं भेजा तो दिक्कत हो जाएगी. अगर तुमने उसे सेकंड नंबर वाले के साथ भेजा तो छोटे वाले के साथ तुम कुछ भी बना लो, मतलब सेकंड वाला बनाओगे तो मतलब या माय लॉजिक वाज दैट कि चेक करके देख लो सबसे बड़ा और छोटा और जो उसका सम है सारे पेयर का सम उतना ही होना चाहिए. मतलब एक पहले सॉर्ट कर लो, फर्स्ट यू विल सॉर्ट एंड देन एक आई इटरेटर आई शुरू करो स्टार्टिंग से, एक आइटरेटर जे शुरू करो फ्रॉम एंड एंड आई प्लस जे शुड इक्वल टू एक्स. एक वैल्यू होनी चाहिए और वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का निकाला होगा. आई डिड दिस इन पाइथन आई गेस. या सॉर्ट कर लिया मैंने, फर्स्ट और लास्ट का मैंने सम निकाल लिया एंड देन आई लाइक आइटरेटर शुरू कर लिया स्टार्ट और एंड. स्टार्ट प्लस एंड शुड बी इफ इट्स नॉट इक्वल टू एक्स देन मैंने रिटर्न कर दिया -1. अदरवाइज सी प्लस इज इक्वल टू अच्छा, यू हैव टू रिटर्न द वैल्यू की वैल्यू यही है कि यार जैसे 1 और 5 जो पेयर बना रहे हैं ना, तो 1 into 5 कर दो, वो ऐड करते चलो, ये चीज एक रनिंग सब में ऐड करते चलो 1 into 5 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 3. तो ये सब मतलब पर पॉइंट ये है कि इसकी जो सम है दैट सम शुड बी सेम. ठीक है, एस ऑफ जो ई है दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू एक्स. देन हम उसमें सी प्लस कर देंगे ये और एस को आगे बढ़ाएंगे, ई को पीछे करेंगे और दैट्स व्हाट वी विल कीप ऑन डूइंग. सबमिट करके दिखा देता हूँ, बट या ऑलरेडी सबमिटेड है. मिनिमम स्कोर ऑफ पाथ बिटवीन टू सिटीज. तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन और यहाँ से थोड़ी लेवल ऑफ डिफिकल्टी सही हो जाती है. तो मतलब इसमें भी बस क्वेश्चन वाज ऑन ग्राफ, तो भाई टॉपिक इन्होंने थोड़ा सा एडवांस कर दिया, तो ये इम्प्लीमेंटेशन सीधी कर देते हैं. मतलब बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन. तो बेसिकली तुम्हें कुछ देखो ग्राफ दे रखा है और वेटेड ग्राफ है. ठीक है, डायरेक्टेड नहीं है, बाय डायरेक्शनल ग्राफ है. ठीक है, बाय डायरेक्शनल रोड बिटवीन ए आई टू बी आई, डिस्टेंस डी आई एंड ग्राफ इज नॉट नेसेसरली कनेक्टेड. ठीक है, नॉट कनेक्टेड भी हो सकता है. तो काफी सारे मतलब द पॉइंट सुन लो आगे क्या है कि मतलब नॉट कनेक्टेड होगा तो स्कोर ऑफ पाथ बिटवीन टू सिटीज इज द एक मतलब आप एक नोड से शुरू करोगे और आप किसी भी नोड तक जा सकते हो.
और ऑब्वियसली वो दोनों कनेक्टेड होने चाहिए आपस में, अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो जा ही नहीं सकते। और अगर वो कनेक्टेड है तो एक पाथ बन रहा होगा, कोई से भी कितने भी मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। तो पर जो भी मतलब उस पाथ की कॉस्ट क्या होगी, उस पाथ की कॉस्ट होगी उस पाथ में जितने भी एजेस आ रही है उसमें से मिनिमम कॉस्ट कितनी है, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। तो रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ अ पाथ। तो जो स्कोर है वो ऑलरेडी आपका क्या है, जो भी मिनिमम मतलब आपको क्या करना है 1 से लेके n, तो 1 से देखना है कि आप कहाँ-कहाँ जा सकते हो। क्योंकि ग्राफ कनेक्टेड नहीं है तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे आप 1 से ना जा सको। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे नहीं रखा, बट इसमें भी 1 से सब पे जा सकते हैं, इसमें भी 1 से सब पे जा सकते हैं। तो आपको बस अगर सब पे जा सकते हो तो वो पकड़ लो कि सबसे छोटा पाथ कौन-सा है और उसकी वैल्यू रिटर्न करा दो। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है 5796 में 5, तो आंसर 5 है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है 1 2 2472, आंसर 2 है, ठीक है। तो अब अगर वो कनेक्टेड नहीं है जैसे 1 से ये जो 2 है ये एक्चुअली 1 से कनेक्टेड, मतलब 1 से हम ये वाला पाथ जा सकते हैं ना, 1 से 3, 1 से 2 जा सकते हैं और 2 से 4 जा सकते हैं क्योंकि 1 2 कनेक्टेड आपस में, ठीक है। बट मान लो अगर कोई दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट होता जो इस कंपोनेंट से अलग होता, वन उस कंपोनेंट में नहीं है, मतलब वन इस कंपोनेंट में है, दूसरे कंपोनेंट में है, तो आपकी मिनिमम वैल्यू तो वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो और वो मतलब वो तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता बल्कि। पर सिंपल सबसे सिंपल ये था कि वन लो, वन से डीएफएस चलाना शुरू करो। देखो कौन कौन सी नोड तुम विजिट कर सकते हो, कौन कौन से एजेस तुम विजिट कर सकते हो, जो जो एजेस के वेट आ रहे हैं सारे उसको लिखते जाओ और उसका मिनिमम रिटर्न कर दो। तो मैंने क्या करा होगा, मैंने सबसे पहले ग्राफ बना लिया बाय डायरेक्शनल। देन आपने विजिटेड वेक्टर डीएफएस चलाया 1 से और बेसिकली एक m इज इक्वल टू 1e9 जो मैंने मतलब इंट मैक्स बना दिया और ये जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो बता देगा मेरे को। इफ इट ऑलरेडी विजिटेड तो जाने की जरूरत ही नहीं है, वरना इसको विजिट कर दो और इसका देखो जितने भी यहाँ से जहां भी जा सकते हो उसकी मिनिमम वैल्यू m को मिनिमम से हम असाइन करते रहेंगे। आई डॉट सेकंड इसकी ये डिस्टेंस है और फिर डीएफएस कॉल कर देंगे हम आई डॉट फर्स्ट पे, क्योंकि आई पे हम जा सकते हैं। अब आई बेसिकली ऐसा है ना, आई डॉट फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में वो नोड पड़ी हुई है, सेकंड पे वो जो वेट है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पे कॉल कर देंगे, फिर वो देखेगा यहाँ से हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, फिर वो वेट देख लेगा। यहाँ पे ये था कि ग्राफ तो ऑब्वियसली ऐसे ही पास करते हैं, विजिटेड ऐसे बनाया हुआ है मैंने और m इज इक्वल टू 1e9 यहाँ पे करा था, m विजिटेड n प्लस 1 को 0 साइन कर रखा है। इफ विजिटेड ऑफ एस हो जाता है तो रिटर्न कर दो, ऑलरेडी विजिटेड है। नहीं विजिटेड तो विजिट कर लो और फिर रिटर्न कर जाओ, ठीक है। रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबने यही करा होगा, बस आपको डीएफएस करना है, ठीक है। ठीक है भाई, फिर यूनियन फाइंड से भी हो सकता है, ये जो कंपोनेंट वाली चीज होती है ना। और मतलब ये जो मतलब इसमें आपका ना यूनियन फाइंड में मतलब एक वो हो जाता है ना कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तो रिप्रेजेंटेटिव आपका एलिमेंट वो छोटी वाली एज हो जाएगी, ठीक है। इसने भी वही करा है, एडजेसेंसी लिस्ट बना दी है, विजिटेड ऑफ एन 1 पे कॉल करा है, एडजेसेंसी विजिटेड सब पास कर दिया एंड नोड इक्वल टू 1 एंड इफ j I dot first distance I dot second, अगर ये नॉट विजिटेड है तो इस पे चले भी जाओ, ठीक है। हाँ, अगर ये विजिटेड भी है तो भी डिस्टेंस तो तुम्हें लेना है, और अगर नॉट विजिटेड है तो इस पे चले जाओ। ओ ये बहुत सही करा इसने। मैं कंफ्यूज हो रहा था यार इसमें कि मैंने जैसे ऐसे करते हैं ना, जैसे दिस इज नॉट द एक्चुअल वे जनरली अगर आप करने जाओगे तो। मतलब ठीक है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आप कर भी दोगे कि विजिटेड को ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं, बट हाउ इंडियंस डू, हाउ वी डू, हाउ आई डू इज लाइक वेक्टर int %, और विजिटेड, और विजिटेड डॉट रीसाइज, इसमें विजिटेड पास करते हैं ग्राफ के बाद, ठीक है। सबसे पहले विजिटेड में सारे जीरो थे मेरे, एम की वैल्यू तो एम ही वो तो होती रहेगी, ठीक है। विजिटेड ऑफ रिटर्न 1 एंड 1 ऐसे सब कुछ सही है ना, फिर भी गड़बड़ आ रही थी मतलब। विजिटेड दे दो, अच्छा वेक्टर विजिटेड को नीचे लाऊं क्या मैं, या फिर इसको रिसाइज हटा देते हैं। वेक्टर डॉट विजिटेड, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ तो एरर आ रही थी इसमें। ठीक है भाई, चल रहा है तो चला लो, आई थिंक मैंने ये तक हटा रखा था।
ये तो बता रहा था विजिटेड था, इफ नॉट विजिटेड आई डॉट फर्स्ट तो एम करो और डीएफएस करो। इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। 5 to 5 to दे रहा है, बट एक्चुअल में अगर मैं ये करूंगा तो फिर एरर, मतलब विजिट हो रखी है, पर वो जिस पाथ से अब विजिट कर रहे हैं ना, ये पाथ बहुत बढ़िया है। जैसे 7173 जब आया तो आपकी 6 2 विजिट हो गई थी, ठीक है, आपके 2 6 वगैरह सब विजिटेड है। बट ये जो आपका 1585 आ रहा है ना, ये आ रहा है जब आप 2 से 4 को विजिट कर रहे हो, तो इससे पहले आपका 4 ऑलरेडी विजिटेड है क्या किसी, हाँ, 5 के थ्रू 4 विजिटेड है, 1 के थ्रू 2 विजिटेड है। 1 से चलना शुरू करेगा, या 1 से देखेगा 1 की लिस्ट में क्या पड़ा है, 1 की लिस्ट में 2 पड़ा है, 1 की लिस्ट में 4 पड़ा है, तो ये दोनों आ जाएंगे, तो 4 ऑलरेडी विजिटेड हो गया। तो मतलब कुछ भी करके वही चीज है कि इस लाइन को तुम उठाओ और यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो पंगा नहीं हो कुछ भी। Shaba shaba, Sonia lacha lacha. So just see this. It should run, right? Because yeah, it should run. And if we do submit, and yeah, everything is fine just over here. The time complexity is again like my code is not, why my code is not much good. 43%, but yeah, that is all that you need to do. But हाँ, ये आपका सिंपल वे में भी हो सकता है, लाइक डीएफ आपका वो यूज करके, क्या कहते हैं उसे, यूनियन एंड फाइंड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करना है, आई एम नॉट सीन टिल नाउ। Divide the numbers into a maximum number of groups. Okay, we'll do this later. Okay, bye guys.